Hello, everybody. Everybody hear me? Yeah, sir, I can hear you. Anybody else? Whatever your sound is clear. Okay. Yes, myself Bharat Thakkar. Uh, and today we are having one session on knowledge sharing. I will give you some introduction of our organization, that is bgtpn.com. BGTPN is a business growth technique partners network. I'm going for somewhat speedy because we already lost some 10 minutes. So this is our network, and we every fourth and second and fourth Saturday we are meeting and making such knowledge sharing events. Personally in Ahmedabad, Porbandar, and Surat, and now in this lockdown period, we are also meeting on webinar also. Our main goal is meet each other, share some knowledge of each other's businesses, and naturally grow together. So this is how everyone can contribute. That is sharing knowledge of your domain, sharing business references, being present in every meeting. Naturally, that's why you meet each other and share the knowledge of each other's business. I already told you second and fourth Saturday we are meeting, and at present we are not charging any fees. Other our new activity during this lockdown period is Atmanirbhar groups. We started this type of groups in Gujarat already, so we call it Atmanirbhar Gujarat groups. But again, we are working on some other cities also, like in Haryana we are starting, in Karnal, in Mumbai, in Pune, in Hyderabad. We are going to start such other groups. I will share all this PPT and of PDF with all our friends, present friends. Uh, this is our BGTPN team, Mr. Bharat Thakkar, myself, Ajay Singh Barad is already there, and Mr. Hemal Parikh is our finance and fundraising consultant. Mr. Kamlesh Khokhri is from Porbandar, Trunal Patel is from Surat, and Mr. Suresh Ganatra is also our industrial and skill development consultant. Now, we come to our today's point. Is our main is why MSME and or startup fails. ज्यादातर स्टार्टअप या MSME या स्मॉल बिजनेसेस ये क्यों फेल जाते हैं? दिस इज ये प्रॉब्लम हमारे मतलब इंडिया में ही नहीं है. एवरी ईयर 6 lakhs companies go out of business in US also. So this is a problem prevails everywhere in the world. There is one survey done by IBM and Oxford that 90% of startups or small businesses तो ये फेल जाते हैं पहले 5 साल में ही या पहले 3 साल में ही फेल हो जाते हैं. क्यों? तो आज हम उसी के लिए बात करेंगे कि ये फेलियर क्यों है. व्हाई? बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. जब हम अगर ये जान लेते हैं कि ये क्यों फेल होते हैं तो उसको रोकने के लिए उसका कुछ प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं.
So let us go ahead. अब मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए जा रहा हूँ कि ऑलरेडी वी लॉस्ट सम 10-12 मिनट्स. फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा स्टार्टअप या एमएसएमई फेस करते हैं तो वो है फाउंडर्स लैक की कॉम्पिटेंसीज फॉर दैट टाइप ऑफ बिजनेस. वो मान लेते हैं कि मुझे सब पता है. कोई भी जो नया बिजनेस शुरू करते हैं उनके पास कुछ ना कुछ स्किल होती है, लेकिन कंप्लीट उसका जो बिजनेस की जो कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए वो नहीं होता है. सो दैट इज द वन थिंग द फाउंडर्स लैक की कॉम्पिटेंसीज फॉर दैट टाइप ऑफ बिजनेस. सेकंड इज जो मैंने आगे बताया, सिमिलर थिंग इज फाउंडर्स आर रियली टेक्नीशियंस विथ एन एंटरप्रेन्योर इज, लेकिन नेचुरली उनके पास जो बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए वो कभी कभी नहीं होता है. फाउंडर्स लैक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट दे आर सर्विंग, नो एक्सपीरियंस इन देयर मार्केट. ऑफन देयर आर जस्ट वो मतलब काफी उनको जहाँ पे काम करना है वो कुछ नया लेके आते हैं. वो नया ये मार्केट में चलेगा कि नहीं उनको डीप नॉलेज नहीं है, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर फेल. दूसरा ये होता है कि उनका जो ध्यान है वो भटक जाता है. फाउंडर्स लीडर्स लॉस्ट फोकस ऑन देयर यूजर और मार्केट. व्हाई? बिकॉज उनको फंड रेज करने के लिए दौड़ना पड़ता है, दूसरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए दौड़ना पड़ता है, और जो उनका मार्केट है उससे उनका ध्यान भटक जाता है. फिफ्थ इज चूजन मार्केट इज टू स्मॉल. उनको जब ये नया बिजनेस शुरू करते हैं तब बड़ी बड़ी माइंड में बहुत बड़ा वो होता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमारे पास इतना होगा, वो होता है, लेकिन जो मार्केट होता है वो काफी स्मॉल होता है, उसका उनको नॉलेज नहीं होता है, और इसलिए नेचुरली दे फेल टू गेट प्रॉपर बिजनेस. अगेन कंपटीशन इज टू स्ट्रॉन्ग. हाँ सर. सर मैंने एप्लीकेशन सेव कर दिया है. ओके. खाली वेरिफिकेशन में जाके नाम सेलेक्ट करके वो उनका जो फील्ड है उसमें काफी कंपटीशन होता है, वो उनको नॉलेज नहीं होता है. ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस. दे मस्ट डू सम मार्केटिंग सर्वे और समथिंग लाइक दैट, तो उनको पता चलेगा कि कंपटीशन कितना है. कैनॉट गेट इनटू द मार्केट प्लेस. जो उनका जो एग्जैक्ट एक क्लस्टर होता है, वो क्लस्टर के बीच में वो नहीं होता है. कभी कभी क्या होता है कि क्लस्टर में ही बिजनेस होता है और उस व्हाट वी कॉल इट ए मार्केट प्लेस, तो वो उसके साथ नहीं रह सकते हैं और ये उनका फेल्योर होता है. हर बार वो क्या करते रहते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो उनका बेबी होता है, तो वो प्रोडक्ट को ही रिफाइन करने में ही ज्यादा टाइम लग जाता है, और वो किसी को दे ही नहीं पाते हैं कि ये अच्छा होगा, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा. वही एक डायलेमा में रह जाते हैं और परफेक्शन लाने में ही उनका टाइम चला जाता है, एंड सो दे फेल टू गेट द मार्केट. सोनली फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट. बात ये होती है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, बिजनेस पे फोकस नहीं करते हैं. कैसे मार्केट में आना, कैसे मार्केट बढ़ाना, वो उनका एक रोल नहीं रहता है, एंड सो द बिजनेस इज फेल अल्टीमेटली. ट्राइंग टू फोर्स डिस्ट्रप्शन. वो फोर्सफुली उनको ऐसा होता है कि मैं कुछ नया कर दूंगा, मैं ये मेरे इंडस्ट्री में मैं बहुत बड़ा काम कर दूंगा, और वो नहीं होता है. वो नहीं होता है तो एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है और बिजनेस नेचुरली उससे सफर होता है.
कई जो कंपनीज होती है या जो नई कंपनीज आती है उनका उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे कंट्रोल नहीं होता है। मैंने आगे जैसे बताया कि वो उनकी प्रोडक्ट को रिफाइन करने में ही लगे रहते हैं, लेकिन अल्टीमेट क्वालिटी, ब्रांडिंग, मार्केटिंग ये सब नहीं कर पाते हैं और बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और इसीलिए ये फेल हो सकते हैं। बिजनेस का पाथ एक डेवलप नहीं किया हुआ, एक प्रोसेस डेवलप नहीं की हुई है, so naturally business is going to fail, startup is going to fail. Starting up with selling out to a big name buyer as the main, जो भी नया बिजनेस आता है, जो भी नए एंट्रेंट्स होते हैं मार्केट में, जैसे कोई भी नई प्रोडक्ट लेके आते हैं, उनका लास्ट गोल क्या होता है कि मैं ये सब स्टार्ट करके किसी बड़े आदमी को बेच दूंगा। ये उनका अल्टीमेट एग्जिट स्ट्रेटेजी होती है। तो एग्जैक्टली जो बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए वो नहीं होता है किस तरीके से एकदम से बड़ा बन जाना। हर एक जो एंट्रेंट्स होते हैं, पेटीएम आया तो पेटीएम के साथ 56 ऐसी कंपनीज आई थी, लेकिन कुछ 4-5 लोग ही चल पाए। तो पेटीएम उसका स्टेक किसी बड़े को बेच पाया, लेकिन सब नहीं बेच पाते हैं। तो ये बात है कि वो उनको चलाना है, तो पहले से एग्जिट स्ट्रेटेजी बना के नहीं चल सकते। पहले उनको किस तरीके से डेवलप होना, बाद में एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाना होता है। दूसरा, जो आप लोग साथ में जो नए बिजनेस शुरू होता है, उनके साथ में जो टीम होती है, जो 3-4 लोगों की टीम होती है, उसके सिवा उनका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उनके जो एम्प्लॉइज है, उनके जो इवन कस्टमर्स है, उनके जो सप्लायर्स है, उनमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। ये जो 3-4 लोग जो नई टीम बनती है और वो लोग जो आइडिया लेके आते हैं, उनको ही मजा आता है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो मार्केट में जाना चाहिए। वो एक्साइटमेंट दूसरे लोगों में, अपने एनवायरनमेंट में भी खड़ा करना चाहिए। कई लोग का तो ऐसा होता है कि वो उनके घर वालों में भी ये इसकी प्रोडक्ट का एक्साइटमेंट नहीं होता है। सो दिस इज द वन ऑफ कोर्स वन रीजन बिहाइंड फेलियर। रॉन्ग टीम, समटाइम्स यू हैव रॉन्ग टीम विथ यू। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा फ्रेंड मुझे मदद करेगा, लेकिन रियल में वो कैपेबल है कि नहीं, वो आपने तय नहीं किया है या आपने ढूंढा नहीं है, तो नेचुरली यू विल बी फेल। सिमिलर फंडिंग के हिसाब से भी होता है, कई बार टेक्निकल और रॉन्ग डिसीजन होता है। सो यू हैव रॉन्ग टीम विथ यू एंड यू कैन फेल। यस, फोकसिंग टू अर्ली ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। एक बार अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट है और उसमें कई बार ज्यादा प्रॉफिट मिल भी जाता है, लेकिन हर बार ये नहीं होता है। और दूसरे का ऐसा हुआ, मेरा भी इस तरीके से मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा हर बार नहीं होता है। तो मार्केट में आने के लिए एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी बनानी होती है। वो अगर नहीं बनाई है, वो किस तरीके से प्राइस ये है, फिर ये बढ़ेगी, फिर ये बढ़ेगी, या हम उसमें कुछ नया लेके आएंगे, तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान चला जाता है, तो नेचुरली इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोर प्रॉफिट you will fail. Yes, numbers don't work. कई बार अच्छे प्रोजेक्ट बना दिए होते हैं, काफी बड़ा कैश फ्लो बना दिया होता है, 5 साल की जगह 10 साल का कैश फ्लो बना दिया होता है, लेकिन वो नंबर्स वो काम नहीं करते हैं। ये जो आगे हमने सब बात की है, जो 15-16 पॉइंट की बात की, वो सब कहीं ना कहीं आपकी जो डिस्टर्ब कर देता है, फंक्शन डिस्टर्ब कर देता है बिजनेस का। तो जो आपने कैश फ्लो या किसी भी तरीके का जो पूरा एक वो बिजनेस प्लान बनाया है, वो काम नहीं कर रहा है। सिमिलर जो मैंने अभी बोला, नो रियल फिनेंशियल प्लान। फिनेंशियल प्लान बनाने में ही गलती किया है। कहीं पे भी जो छोटी सी गलती है, वो
आगे जाके 5 साल में एक बड़ा आपको दिखाता है कि इतना बड़ा कैश मिल जाएगा, इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता है। सो प्रॉपर पर्सन या प्रॉपर कंसल्टेंट से फिनेंशियल प्लान बनाना वो भी एक इसमें जरूरी बात हो जाती है। इनएबिलिटी टू मेक टफ फिनेंशियल डिसीजंस, यस, आपको ये किसी के साथ फाइनेंस लेना है, नहीं लेना है, बैंक से लेना है, कोई इन्वेस्टर से लेना है, कोई HNI से लेना है, किस तरीके से फाइनेंस लेना है या फाइनेंस में किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसका डिसीजन लेने में हर एक ऑलमोस्ट 90% ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स, स्टार्टअप्स, MSME वो गलती करते हैं और उनकी ये एबिलिटी नहीं होती है। दे शुड टेक decisions with their proper financial consultants. Fear of failure, always ये fear रहता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, क्या होगा, किस तरीके से लोग मुझे क्या कहेंगे। सो इसी में उनका ध्यान भटक जाता है, उसमें बिजनेस में ध्यान नहीं दे पाते हैं एंड अल्टीमेट फेल्योर एंड दे run out of cash. So this is building for self, not customers. Yes, this is the most important thing. ये लोग जो बनाते हैं, जो नए एंट्रेंस होते हैं, स्टार्टअप कुछ भी करते हैं, वो उनके खुद की एक आनंद के लिए करते हैं, उनकी खुशी के लिए करते हैं। वो होना ही चाहिए, वो नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए वो पता नहीं होता है। अगर कस्टमर को चाहिए वो नहीं आप दे पाते हो तो नेचुरली यू विल completely fail and your business will go out of the market. Yes, there are so many reasons. Financial और stock information are kept secret. लोग एक दूसरे से वो secret रखते हैं। काफी कुछ मैंने यहाँ दिया हुआ है। This I will share with all of you. हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं अभी। Anybody can ask or give your, see, this is our this type of our meeting is not मैं बोलूँगा और आप ही सुनेंगे उस तरीके से नहीं है। आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। You can put your views also. Yes, Amal bhai. Hello. Bharat, hello. Amal bhai, your views. Sir, it's already discussed with you the reasons of startup failures and everything. वो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्टार्टअप को धीरे धीरे करके बढ़ने की जरूरत होती है with the help of consultants, with the help of proper guidance, proper mentor. Yeah. So have a long survival period and after that they can plan for exponential growth. Yeah. नहीं तो इनिशियल स्टेज में ही वो फेलियर की तरफ बढ़ने लगते हैं एंड जाके 3 मैक्सिमम 5 साल में they exit the business even though they have got very good idea and very good product. Okay. Right. एक पॉइंट जो आपने बहुत अच्छा, हेलो, या एक पॉइंट जो आपने बहुत अच्छा कवर किया था इज लाइक a product को they should give exposure to the market, not taking it as a baby of their. If they require किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके वो लोग अच्छा सा मार्केटिंग कर सकते हैं. Yes. So it's not necessary कि स्टार्टअप खुद का मार्केटिंग खुद से ही करेगा और जब ग्रो होगा तब जाके वो मार्केट में फैलना शुरू होगा. You can contact any of the good company in your industry and आप जाके उनसे अपना मार्केटिंग करवा सकते हो. Yes, yes. Right. Yes. Perfect. Anybody? Bharat, the biggest concern is like every startup doesn't have proper documentation. Like
बहुत सारी जगह पे डॉक्यूमेंटेशन लेक करते हैं और उनके पास कोई रिटर्न स्ट्रेटेजी भी नहीं होती, जिसकी वजह से क्या वो मतलब इनिशियल तो स्टार्ट हो पाते हैं बट आगे जाके दे आर ब्लाइंड, लाइक अभी क्या करें, ऐसे दुविधा में वो डिवाइंड है. Yes. Yes, Mr. Subham. Hello. Your opinions? Your opinion, please. Anyone can give their opinion, please. Okay, okay. Mr. Subham's mic is not working. No problem. Anybody else, please? It's open forum to all. Anyone can give a view. Anyone can discuss the point. Yeah, sir. Yes, yes. Yes, please. I really feel that the point you said about people, I mean, startups concentrate a lot on product development and they do forget about branding their product or creating, marketing it or promoting it. This, I guess, this will actually cause most of the failures. Yeah. Again, please. Hello. Not getting Sorry, you. Not getting you properly, please. Okay, no, like you actually said that most of the startups in the initial stages to concentrate on their product development, I mean continuously refining it for the further development, and they do completely forget on concentrating on the branding part or the marketing or promoting Yes. part. I guess Yes. will be most of the reasons to, I mean, for the failure. Yeah. Yes. I Yeah, have observed it is one of the in reason. organizations. Yeah. Yes. True. Anybody? But the thing is, Bharat, like when it is a startup, like they are very confused whether they are focusing on concept development or they are focusing on marketing and branding. So there are I have met so many startup entrepreneurs who are confusing about that, like whether we what will be their actual focus of, like whether Yeah. it is like their product or it is first is marketing or branding. Can you give some brief about that? Pardon. Again, please. जैसे कि मोस्टली जो स्टार्टअप्स होते हैं उनका कंफ्यूजन यही रहता है कि मैं अभी क्या प्रोडक्ट पे ध्यान दे या फिर ब्रांडिंग या बिकॉज दे आर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ. सो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? यस, उनको प्रोडक्ट पे तो ध्यान देना ही चाहिए. उनको प्रोडक्ट पे ध्यान देने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप होगी और उसका ब्रांडिंग या मार्केटिंग नहीं होगा, साथ में उसका मोनेटाइजेशन नहीं होगा, ये सब चीजें एक प्रॉपर बिजनेस प्रोसेस के साथ चलनी चाहिए और उसके लिए उनको प्रॉपर कोई गाइड करना चाहिए. अगर वो गाइडेंस नहीं मिलता है या वो लोग अच्छी तरीके से उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो नेचुरली दे विल फेल. एक पूरी प्रोसेस और एक पूरा पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे कहाँ तक ये प्रोडक्ट को डेवलप करना है और ब्रांडिंग और मार्केटिंग साथ में किस तरीके से करना है. अदरवाइज नेचुरली अगर प्रोडक्ट बनेगी और बिकेगी नहीं तो उसका कोई वजूद नहीं है. यस. एनीबडी? Nobody? So, can we stop here?
You can send me your. Yes, one thing more. We have 2-3 minutes, but I will give you something. There is one latest development. गवर्नमेंट ने अभी आज ही एक आया है कि एमएसएमई मिनिस्ट्री ने जो लोग ने यूएम और ईएम पार्ट 2 में रजिस्टर्ड हुए हैं उनको फिर से उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है। 1 डे ऑफ जुलाई से ये रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और इसमें जो नई डेफिनेशन दी गई है एमएसएमई की उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगा। I will share this all this PPT and all this to everybody. So we are ending here, and thank you everybody. Thank you for participating. Okay, bye. Thank you, Yeah, Bharat bhai. Okay, thank you. Sir, feedback form. Those who are interested can participate again in our 4 to 5 session is in Gujarati. Of course, Gujarat people will be there, but again, you will learn Hindi and Gujarati are very much similar. So, yes, everybody can participate again. Thank you. Thank you.